Hello everyone. In the last video we have learned about the safety rules on the road. Today we are going to learn about safety rules that you should follow on road, but when you are on foot, you are walking. At that time you should also follow, because number of times children go by foot on the road. First of all, how you should cross the road. When you have to cross the road, first look to the right, then left, then again right. And if you find that the vehicles are too far from you, only then you should cross the road. Okay? And one thing more, you must walk on the footpath. I have seen number of children, they walk in the road, they don't bother, but you can get an accident. So please, whenever you walk on the road, walk on the footpath. And if you have to cross the road, cross at the zebra crossing. What is zebra crossing? Zebra crossing are the lines, black and white lines that are drawn in the middle of the road. If you want to cross the road, you should cross the road from here only. What happens? What is the rule here? Suppose the traffic is coming from here, there will be red light and the traffic will stop. The traffic is coming from here, there will be red light and the traffic will stop. So the traffic from both the sides will stop. It happens because the pedestrian, they should cross the road here, so both the traffics are stopped, and the people who want to cross the road at that time, they can cross the road. So be very careful whenever you are walking on the road. And then if some small child is walking with you, or you are walking with your parents, hold their left hand. Left hand means if you are walking on the right side, your right side will be on the road side, and you will be on the left side of your parents, and then move. Because if you are on the right side of the parent, what will happen? You will be on the road side, and then you can meet an accident, or someone can hit you also. Now these were the rules that you should follow on the road. But there are some rules that you should follow at your home also. In home also, I have seen there are number of accidents that take place. First of all, with fire. Never play with fire. Don't play with fire. Okay? How you play with fire? You burn a candle, or you burn a matchstick, and you play with it. Sometimes I have also seen that you, with a candle in your hand, you start searching something, and you don't take care when the flame is touching a wooden piece or touching a curtain. It has happened number of times that due to this carelessness, the house, it goes on fire, and it happens. And then number two is your toys. Your toys, I have seen that when you play with your toys, you just leave them on the floor. What will happen? When someone will come, they may step on the toy, and they may fall down. So whenever you play, after playing, collect all the toys and keep them either in the basket or the almirah, or wherever the place is. Keep the toys in those places. Then with knife, if you ask your mother that give me this thing, or you cut me this thing for me, and your mother says that okay, I will do it afterwards. Now what do? You just pick up the knife and start doing your thing. If you want to make some dish, you want to do something, so please ask your mother or ask an adult to cut the things. Don't use knife on your own. What happens? You don't know how to use a knife or a scissor also. कैंची से भी काटना आपको अभी तक नहीं आता है. आप कह रहे हो कि हाँ आता है, बट यू डोंट बी केयरफुल. आप केयरफुल नहीं होते उसको काटते समय. तो इसलिए जब भी सीजर यूज करनी है या नाइफ यूज करना है, तो डोंट यूज इट योरसेल्फ. आस्क एनी एडल्ट सो दैट ही कैन कट द थिंग्स. बिकॉज नंबर ऑफ टाइम्स व्हाट हैपन्स, आपके साथ भी कभी हुआ होगा, चाकू से कुछ काटते समय ध्यान नहीं रहा और आपका हाथ या आपकी उंगली कट गई. तो इसलिए बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग नाइफ.
Then electricity. There are number of accidents that take place because of electricity. One thing, whenever you are applying and whenever you are operating with any electric appliance, wear rubber shoes और rubber slippers, रबड़ की चप्पल या रबड़ के जूते पहन करके काम करिए, क्योंकि अगर करंट आपकी बॉडी में आ भी रहा है तो वो रबड़ के जूते या रबड़ की जो चप्पल है वो करंट को आगे नहीं जाने देगी, और करंट तभी ज़्यादा इफेक्टिव होगा अगर करंट अर्थ को टच कर जाएगा। अगर अर्थ को टच नहीं करेगा तो वो आपको इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इसलिए अगर कभी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस का स्विच लगा रहे हो तो ध्यान रखिए कि नंगे पाँव नहीं हो आप, और आपने रबर के जूते या चप्पल पहनी हुई हो। उसके बाद डोंट टच एनी इलेक्ट्रिक अप्लायंस और इलेक्ट्रिक स्विच विद वेट हैंड। गीले हाथों से, आपके मम्मी पापा भी आपको बोलते होंगे कि गीले हाथों से इलेक्ट्रिक स्विच को, इलेक्ट्रिक प्लग को हाथ मत लगाओ, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बहुत तेज़ी से पानी के थ्रू बह जाता है, और इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोज फ्रॉम with the help of water, it flows and it will enter your body। आपको करंट लग जाएगा, बिकॉज वाटर इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर क्या होता है? जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए। अब लकड़ी जो है, वुड है, इट इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जल्दी से पास नहीं होती है, तो इसलिए लकड़ी से आप अगर टच करोगे इलेक्ट्रिक अप्लायंस को तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप गीले हाथों से इलेक्ट्रिक अप्लायंस को टच करोगे तो यू कैन गेट इलेक्ट्रिक शॉक ऑल्सो। और जब भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस का काम खत्म हो गया तो सिर्फ यहाँ नहीं कि जहाँ पे उसका वो जो बटन है वो बंद कर दो, जो उसका मेन स्विच है दैट ऑल्सो शुड बी पुट ऑफ, उसको भी ऑफ कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें अभी इलेक्ट्रिसिटी है। बहुत बार ऐसे एक्सीडेंट होते हैं कि वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बना हुआ है और धीरे धीरे वो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बनते बनते वायर में आग लग जाती है, इलेक्ट्रिक अप्लायंस में आग लग जाती है। इलेक्ट्रिक अप्लायंस मीन्स वो चीज़ें जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, जैसे आपका जूसर, मिक्सर, टेलीविज़न है, ये सब इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। जो भी चीज़ इलेक्ट्रिसिटी से काम करती है दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक अप्लायंस। So whenever you use electric appliance, switch off from the main plug. Clear? उसके बाद there are number of things. And one thing more, for that road safety, whenever you are walking on the road, then also you should not use mobile phones. जब आप रोड पे चल रहे होते हैं, मैंने बहुत से लोगों को देखा हाथ में मोबाइल फ़ोन होता है और उस पर टेक्स्ट मैसेज करते जा रहे हैं और दे आर कीपिंग ऑन वॉकिंग। उससे क्या हो रहा है? आपका ध्यान कहाँ है? सड़क पे तो है नहीं, ध्यान तो फ़ोन में। सामने से कोई भी गाड़ी वाला आएगा, और ऐसा बहुत बार हुआ है, आपका ध्यान फ़ोन में है, सामने से जो गाड़ी वाला आ रहा है उसका ध्यान भी फ़ोन में है, और एक्सीडेंट हो जाता है ऐसे। तो वेन एवर यू आर वॉकिंग ऑन द रोड, डोंट look at your phone or don't talk on your phone. Keep your phone in the pocket whenever you are on the road. This is for your safety. अब उसके बाद है, these are some safety rules that you should follow at your home. And now about school. School में क्या safety rules होने चाहिए? Number of times I have seen whenever you are on the stairs, जब आप stairs पे होते हो तो यू आर इन अ हरी, बहुत तेज़ी से आप चढ़ते हो सीढ़ियाँ, उतरते हो। अगर आप लाइन में हो तो भी आप पुशिंग करते हो एक दूसरे को। दैट इज़ वेरी बैड एंड दैट कैन कॉज एन एक्सीडेंट। जस्ट थिंक, सोचिए आप सीढ़ियों में चल रहे हैं, सभी बच्चे लाइन में चल रहे हैं, एक बच्चे ने एक दूसरे बच्चे को, अपने आगे वाले को पुश किया, उसकी वजह से सारे बच्चों को धक्का लगेगा और सबके सब एक साथ गिर जाएंगे। कितनी ज़ोर से चोट लगेगी सबको। तो whenever you are in stairs, don't push. उसके बाद never run in the corridor. कॉरिडोर में कभी भी दौड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इधर से आप दौड़ रहे हैं, सपोज दिस इज द कॉरिडोर, दीज आर डोर्स ऑफ द क्लासेस, आप इधर से दौड़ते हुए आ रहे हो, यहाँ क्लास में से कोई बच्चा बाहर आ गया तो व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन? दोनों का एक्सीडेंट हो जाएगा, टकराव हो जाएगा और चोट भी लग सकती है, और फिसल भी सकते हो आप कॉरिडोर में।
हाँ, कॉरिडोर के आपके जो फर्श हैं वो स्लिपरी होते हैं, सबको पता है। तो आप वहाँ पे फिसल भी सकते हो और आपकी टीचर्स कई बार आपको मना करती हैं दैट डोंट रन इन द कॉरिडोर, करती है ना। तो यू शुड नॉट रन इन द कॉरिडोर। उसके बाद क्लास में भी आप भागते हो, खेलते हो, बेंचेस के चारों तरफ डेस्क पे कूदते हो, दैट इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ एक्सीडेंट। आपको पता भी नहीं चलेगा आपका बैलेंस कब बिगड़ गया, और आपके साथ कभी हुआ भी होगा या किसी बच्चे के साथ आपने देखा भी होगा, टेबल के ऊपर से जंप करने की कोशिश करता है, उसका हाथ या पैर फिसल जाता है, टेबल भी गिरती है और वो बच्चा भी गिर जाता है और चोट लग जाती है। तो इसीलिए यू शुड टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स in your schools also and in playground also. Whenever you are going for a swing or playing, you should go at your turn only. झगड़ा नहीं करना चाहिए कि मेरी टर्न है और या नहीं है, और झगड़ा करके झूला ले लेते हो, उस जानबूझ के उसको धक्का मारते हो ताकि वो गिर जाए। दैट इज ऑल्सो अगेंस्ट द सेफ्टी रूल्स। दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स दैट यू डोंट टेक केयर। एक और बात मैंने देखी कि बच्चे एक दूसरे का हाथ खींचते हैं। Whenever you pull a hand of anyone, notice उसकी बोन यहाँ से डिसलोकेट हो सकती है, यहाँ से डिसलोकेट हो सकती है। डिसलोकेट का मतलब बोन वहाँ से हट सकती है, मीन्स वो फ्रैक्चर टाइप हो जाता है, पूरे 1 महीने का उसको प्लास्टर लग सकता है। तो बी वेरी केयरफुल कि ऐसे टाइम पे आप जब खेल रहे हैं तो ये भी छोटी छोटी बातें जिनका आप ध्यान नहीं रखते हो वो उनका ध्यान रखो। इस तरह से बच्चों की बाजू को खींचिए नहीं, वरना क्या होगा और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो दीज आर सेफ्टी रूल्स। अगेन आई हैव गिवन यू द सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड, इन द स्कूल कॉरिडोर, इन द स्कूल प्लेग्राउंड, एट होम ऑल्सो, एंड फायर सेफ्टी रूल्स ऑल्सो। नाउ these are the rules. Suppose you are following all these rules, you are good student and you are following these rules, but sometimes what happens, fire come out, आग लग जाती है कहीं, ऐसे में आप क्या करें, क्या करें? सपोज आपके रसोई में किसी कपड़े में आग लग गई, तब उस टाइम आप क्या करेंगे? हाँ, आप पानी लेंगे और पानी से आग को बुझा देंगे, ठीक है, क्योंकि वो छोटा सा कपड़ा था और आग लग गई। अब कभी किसी बहुत बड़ी जगह पर सपोज कमरे में आग लग जाती है, वहाँ पे लकड़ी का इतना सामान है, तब आप क्या करेंगे? तभी आप बाल्टी भर के और पानी की डालेंगे, या फिर आप फायर ब्रिगेड को भी कॉल कर सकते हो, फायर ब्रिगेड आग बुझा देंगे। और अगर कभी शॉर्ट सर्किट से, शॉर्ट सर्किट क्या होता है, जब 2 वायर इकट्ठे जा रहे हैं और वो दोनों वायर आपस में जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, तो ऐसे टाइम पे स्पार्किंग होती है, स्पार्किंग होने से आग लग जाती है। तो ऐसी आग को बुझाने के लिए कभी भी डोंट यूज वाटर, नेवर पुट ऑफ इलेक्ट्रिक फायर विद द हेल्प ऑफ वाटर। Okay, why? Because just now I told you water is a good conductor of electricity. अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो आग लगी है उसको पानी से बुझाओगे तो क्या होगा, उस पानी से तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मूव करेगी और जो भी इंसान पानी फेंक रहा है उस तक पहुंचेगी और उसको इलेक्ट्रिक करंट या शॉक लग जाएगा। तो इसीलिए कभी भी जो बिजली से आग लगी हुई है उसको पानी से नहीं बुझाना चाहिए। और पेट्रोल से, जो पेट्रोल से आग लगती है उसको भी आपको पानी से नहीं बुझाना चाहिए, बिकॉज वॉट पेट्रोल इज लाइटर देन ऑयल। पेट्रोल जो है ऑयल से लाइटर होता है। एक बर्तन में आप पानी लीजिए, ठीक है, उसमें आप ऑयल डालिए, क्या होगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो क्या हुआ, आग क्यों बुझाई जा रही है, आग कैसे बुझाते हैं, लॉजिक क्या होता है? जब आप आग बुझाते हैं तो 2 बातें काम करती हैं। एक तो टेम्परेचर, उस चीज़ का टेम्परेचर कम हो जाता है तब आग बुझ जाती है। दूसरा, उस चीज़ को आपने जब ढक दिया चाहे मिट्टी से, तो
आप पानी डालते हो टेम्परेचर कम हो जाता है, लेकिन जब आप मिट्टी डालते हो या कोई मोटा कपड़ा डालते हो तो क्या होता है, उस चीज़ को ऑक्सीजन की सप्लाई मिलनी बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है। अब जब आप पेट्रोल की आग पे पानी डालेंगे तो क्या होगा, वो पानी तो पेट्रोल से हैवी है, नीचे चला जाएगा और पेट्रोल ऊपर रह जाएगा, ठीक है कि नहीं। और वो पेट्रोल में तो आग लगी हुई है, वो पेट्रोल में और ज़्यादा आग लग जाएगी। इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है पेट्रोल की आग को पानी से बुझाने का। इसलिए पेट्रोल की आग को भी मिट्टी से बुझाइए या फिर फायर एक्सटिंग्विशर से पेट्रोल की आग को बुझाइए, ठीक है। फिर किसी के कपड़ों में आग लग जाए, किसी इंसान को आग लग जाए, तब आप क्या करेंगे, कोशिश कीजिए कि उसके ऊपर पानी ना डालिए। कोई भी कपड़ा लीजिए, उसके ऊपर डालिए और उसको कपड़े के अंदर रैप कर दीजिए। जैसे घर सामने कोई मोटी चादर पड़ी हुई है या कोई मोटा कपड़ा पड़ा हुआ है, उसको लेकर के तुरंत उसके ऊपर डाल दीजिए और उसको उसके अंदर रैप कर दीजिए, और इससे उसको आग लगने से वो बच जाएगा, क्लियर। So this is all for today. In the next video I will give you some first aid and I will also continue with this chapter. Thank you.